आइए आपको सीधे ले चलते हैं नई दिल्ली, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के निवेश के इंटरैक्टिव सत्र में शामिल हुए। धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। थैंक यू जेंटलमैन। तो चलिए इस दीप की ज्योति के साथ शुरुआत करते हैं इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, टू प्लीज कम एंड फेलिसिटेट सीएम सर। लोगों के नाम ले देगा। श्री इलैयाराजा आईएएस प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भी हमारे बीच मौजूद हैं। श्री मनु श्रीवास्तव आईएएस अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग भी हमारे बीच मौजूद हैं। We have other dignitaries on the stage, ladies and gentlemen, felicitating everyone who has taken their precious time here. Shri Manohara Kumar, Mukhya Karyakari Adhikari, Topan. Shri Deepak Arora, Prabandh Nideshak, Sanofi. Shri Kedar Lele, Mukhya Karyakari Adhikari, Helion. Shri Rikant Pitti, Seh-Sansthapak, Ease My Trip. Use this one. Welcome to Marks. Hanji. Use this mic. Thank you so much, gentlemen. Now I request Mr. Rikant Pitti, immediate past chairman, Confederation of Indian Industry, Delhi State, and co-founder of Ease My Trip, to please join us on the stage to deliver the welcome address. May I request everyone to kindly put your hands together. Thank you. Thank you so much. Good evening, everyone. Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Manu Srivastav, Mr. Raghavendra Kumar Singh, Dr. Ilayaraja T, Mr. Chandramouli Shukla, dignitaries and off the dais. Ladies and gentlemen, on behalf of Confederation of Indian Industries, CII, it's my pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to all of you to Delhi. We are deeply grateful to Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji for inviting us for this interactive session on investment opportunities in Madhya Pradesh. Honorable Chief Minister sir, it is indeed an honor and privilege to be the part of this important session focusing on investment opportunities in one of the India's fastest growing states. The state's progressive industrial policies, robust infrastructure push, focus on ease of doing business, and commitment for partnering with industry have created an enabling environment that inspires confidence and encourages new investments. Today's session provides a valuable platform for all of us, especially the industry members, to gain insights into the emerging opportunities across key sectors in Madhya Pradesh, be it renewable energy, food processing, tourism, logistics, pharmaceuticals, or manufacturing. It also serves as an opportunity for open dialogue where we can share our perspectives, understand policy priorities, and explore avenues for deeper collaboration between the state and the industry. CII has been working very closely with the government of Madhya Pradesh, and we are committed to strengthening this collaboration through actionable outcomes. I'm confident that today's session will pave the way for new ideas, strategic investments, and long-term partnerships between Delhi's dynamic industries and Madhya Pradesh's fast transforming economic landscape. From a personal example, I would like to mention here, sir, we started electric bus manufacturing 2.5 years back, and from the state of Madhya Pradesh was the first one to acknowledge us, and we got an order of 100 buses from Madhya Pradesh. Thank you so much, sir, for encouraging all of the startups and especially the industries like us.
And once again, a very warm welcome to Honorable Chief Minister and all the participants present here today. Thank you for joining us, and we look forward for an enriching session ahead. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध, उत्कृष्ट अधोसंरचना, उद्योग अनुकूल नीतियों और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण के साथ मध्य प्रदेश आज भारत के सबसे तेजी से उभरते निवेश गंतव्यों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। आइए एक ऐसी प्रेरक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश की असीम संभावनाओं, निवेश के नए आयामों और विकास की इस सशक्त यात्रा का साक्षी बनते हैं। All eyes towards the screen, please. If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first global skills park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, access to multiple airstrips and 8 world-class airports for connectivity and doing business with ease. If you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions, if you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India, where tradition meets innovation and opportunities are ever expanding. The state is building the foundation of a Viksit Madhya Pradesh and contributing actively to the vision of a Viksit Bharat. Come to Madhya Pradesh, the land of infinite possibilities. So, ladies and gentlemen, that's your call. Aiye Madhya Pradesh, the land of infinite opportunities. Now, I would like to invite on the stage Mr. Raghavendra Kumar Singh, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, for a detailed presentation on the investment landscape and sectoral opportunities in Madhya Pradesh. Please put your hands together as we welcome Mr. Raghavendra Kumar Singh. हरिकांत पिट्टी साहब, श्री मनोहरा कुमार टोपन से, श्री मनु श्रीवास्तव सर, पंचासीन अतिथिगण और यहाँ पे पधारे हुए हमारे सभी इसको पूरा कर इसको
इसको फुल कर दूँगा। सेकंड में से आप इसको आगे बढ़ाएंगे चलेगा सर, वो अदरवाइज वहाँ गड़बड़ होगा। मैं आज के कार्यक्रम के बारे में केवल यही कह सकता हूं कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का निवेश के प्रति प्रतिबद्धता इसी से जाहिर होती है कि भारत टैक्स के प्रोग्राम में सर हम लोगों के साथ पिछले 3 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार निवेशकों के साथ इंटरैक्शन किया सर ने। अभी एक ये इंटरैक्टिव सेशन जो मल्टीपर्पज़ डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज उनके लीडर्स के साथ डिस्कशन करेंगे और इसके तुरंत बाद पर्यटन के बारे में एक इंटरैक्टिव सेशन एक प्रोग्राम में और जाएंगे। तो पूरा दिन ही सर ने आज निवेश के लिए समर्पित किया है और आपको यह जान के अच्छा लगेगा कि सर ने निवेश को प्रोत्साहन देना और उद्योगों को प्रोत्साहन देना उस कार्य को और तेज़ी से बल देने के लिए हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मिनिस्टर इंचार्ज भी ऑनरेबल सीएम साहब स्वयं हैं। तो ज़बरदस्त मेहनत उनके द्वारा और पूरा फोकस उनका इसी सेक्टर के ऊपर, इन सारे सेक्टर्स के ऊपर है और इन्हीं के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में औद्योगिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, पर्यटन सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सभी में ज़बरदस्त प्रगति आपको पिछले 2.5 वर्षों के अंदर देखने को मिली है। बहुत ही संक्षेप में आपको अपनी बात कहूँगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिक रूप से लोकेटेड है मध्य प्रदेश और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट इन एवरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी सेक्टर्स होंगे सभी में हमारे पास काफ़ी स्कोप है। हमारे पास पॉलिसी सभी के लिए हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ जो कहते हैं कि नेचर हैज़ गिवन अस प्लेंटीफुल रिसोर्स रिच मध्य प्रदेश है। जोग्राफिकली भारत का दूसरा सबसे बड़ा हमारा स्टेट है और अगर पॉपुलेशन वाइज देखें या कंज्यूमर बेस के हिसाब से देखें तो 5th लार्जेस्ट पूरी कंट्री में है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्किल्ड मैन पावर बहुत ही लो कॉस्ट पे, रिजनेबल कॉस्ट पे हमारे पास उपलब्ध है। वेरी गुड एंड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, 100,000 एकड़ से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं हमारे पास। एबंडेंस ऑफ वाटर सप्लाई है, मोर देन 1000 बिलियन क्यूबिक मीटर। पावर सप्लाई है 31 गीगावाट से भी ज़्यादा और उसका करीब 1/5 हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आता है। मध्य प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो इससे सीमलेसली कनेक्टेड टू एंटायर कंट्री और इसके अगर सेंटर से, मध्य प्रदेश का सेंटर से अगर मैं 500 किलोमीटर्स का एक रेडियस अगर ड्रॉ करूं तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो पूरा कंज्यूमर बेस है वो सारा का सारा इसके होराइजन पे आ जाता है। हमारे पास एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर के पास में 6 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं, 8 हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे जंक्शंस हैं। तो आप अगर नक्शे में देख रहे हो तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो देयर इज़ वेरी गुड कनेक्टिविटी। मोर देन 500,000 किलोमीटर्स ऑफ वेरी गुड एक्सीलेंट कैटेगरी रोड नेटवर्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। भारत सरकार के हेल्प से मध्य प्रदेश कुछ एक बड़ी एम्बिशियस स्कीम्स में काम कर रहे हैं और डिफरेंट सेक्टर्स के जो मैं बता रहा था कि मध्य प्रदेश की पूरी अप्रोच मल्टी प्रोंग्ड है और उसमें आप देखेंगे कि कहीं हमारे पास फुटवेयर का पार्क है मुरैना में, फिर उसके बाद से मेडिकल डिवाइसेस पार्क में विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है, टेक्सटाइल का इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्रा पार्क धार में है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मैंने जिक्र किया, एक अपकमिंग टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो कि ग्वालियर में प्रस्तावित है, प्लास्टिक पार्क 2 जगह पे है, एक ग्वालियर के पास में और एक रायसेन भोपाल के पास में, और काफ़ी सफलतापूर्वक जो हम लोगों ने एक अचीव किया है रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का नर्मदापुरम में, बहुत ही शानदार उसमें करीब 1800 एकड़ के एरिया में पार्क है। मध्य प्रदेश की पॉलिसीज़ की चर्चा मैं संक्षेप में करना चाहूँगा। सो वी हैव वेरी रोबस्ट policies all across all the sectors of industries.
we give investment promotion assistance up to 40%, and then there are different multipliers for employment. It can go up to 1.5. For export, it can go up to 1.3. Priority area, the areas where there is लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पे 1.3 का मल्टीप्लायर मिल सकता है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपका है 51% से ऊपर तो 1.2 का भी मल्टीप्लिकेशन आपको मिल सकता है इसके ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट है, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सपोर्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए सपोर्ट है, R&D के लिए सपोर्ट है, और चूँकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं तो इसलिए हमने एक्सपोर्ट की अपनी विशेष पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, और हम एक्सपोर्ट फ्रेट असिस्टेंस भी देते हैं। इवन डिटेल यहाँ पे नहीं है, पर इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट आपके होते हैं उसके ऊपर भी हम सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी एक ख़ास बात यह है कि वी हैव ट्राई टू स्टडी विद द स्टेक होल्डर्स, और हमने जो पॉलिसी की डिज़ाइनिंग की है तो वो उस सेक्टर को देख के की है, और इसीलिए ये जो आपके सामने जो स्लाइड है इसमें एग्री, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग के लिए हमारी एक पॉलिसी में डिफरेंट उसको सपोर्ट देने की बात की गई है। जहां बाकी जगहों पे 40% तक का सपोर्ट है, यहाँ पे 1.5 टाइम्स का एक मल्टीप्लायर मिलता है। दैट मीन्स द सपोर्ट कैन गो अप टू 60%। API और बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमारी पॉलिसी है। टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए हमारे पास पॉलिसी है। उस पॉलिसी में इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कही गई है, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस एंड ऑल अदर असिस्टेंसेस जो कि आपको पॉलिसी में मिलेगी। एरोस्पेस और डिफेंस को विशेष रूप से प्रमोट करने के लिए हम लोग ने अलग से पॉलिसी रखी है। बायोटेक के लिए है। गारमेंट, फुटवेयर और टॉयज़ बहुत ही ज़्यादा प्रभावी सेक्टर्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो इस सेक्टर में पॉलिसी की बाकी चीज़ें तो आप जानेंगे, पर इसमें जो सबसे बड़ी बात ऑनरेबल सीएम साहब ने हम लोगों को निर्देश दे के करा रखी है, 5,000 रुपीज़ पर मंथ पर एम्प्लॉई 5 ईयर्स के लिए। इस सेक्टर में अगर आप गारमेंट, फुटवेयर और टॉय सेक्टर में हैं तो दैट इज़ वेरी ह्यूज सपोर्ट। तो न सिर्फ हम आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बल्कि ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के समय में भी मदद करते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए है, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के लिए और हाई वैल्यू एडिशन की पॉलिसीज़ हैं। और इन सब पॉलिसीज़ के अलावा कैबिनेट कमेटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है जिसको ऑनरेबल सीएम साहब चेयर करते हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स हैं। उस लिमिट्स के हिसाब से जो उद्योग, बड़े उद्योग आते हैं उनके लिए कस्टमाइज्ड पैकेजेस भी हम सैंक्शन कर सकते हैं। हमारी जो पॉलिसी का सपोर्ट है वो लॉजिस्टिक्स के हिसाब से प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स को हम 50% उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल हाउसिंग को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के लिए है, और जैसा मैंने बताया कि लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट पे हमारी विशेष एक अलग तरह की पॉलिसी पहले से ही मौजूद है। हमें कुछ जगहों पे ईश्वर की कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी के हाथों हम लोगों ने भूमि पूजन कराया था पीएम मित्रा पार्क का। अल्टीमेट सक्सेस लेके पीएम मित्रा पार्क आ रहा है। करीब 2100 एकड़ से अधिक के एरिया में है। 1100 एकड़ से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल अलॉटेबल लैंड थी वो अलॉट की जा चुकी है। बहुत बड़ा निवेश जिससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 3 लाख लोग रोजगार उन्हें मिलेगा, और 5 लाख 6 लाख किसानों को उससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। पूरा कॉटन ग्रोइंग एरिया के नज़दीक है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और स्काडा रिलेटेड सिस्टम, सब कुछ बहुत ही मॉडर्न और अपडेटेड फॉर्म में पीएम मित्रा पार्क धार में आ रहा है। कुछ हमारे जो नए पार्क्स हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, एक स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया हमारा मसवासी ग्रांट सागर में है। 1500 एकड़ से ऊपर का एरिया है। बहुत ही सूटेबल होगा टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, फार्मा, प्लास्टिक, मशीनरी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। इस पार्क की खासियत ये है कि यहाँ लैंड की कॉस्ट 1 रुपये है। डेवलपमेंट की कॉस्ट आपसे 20 आसान किश्तों में वसूली जाएगी 20 सालों में। दैट मीन्स वो भी आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक है।
और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इसका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस हम इस एरिया का लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी विल गो बिलो 5 रुपीज़। तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और एकदम भारत के सेंटर में अगर आप नक्शे में देखेंगे है। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन अपकमिंग है जो फ्यूचर में ग्वालियर में आना है, 170 एकड़ के एरिया पे आना है। और इसकी इंसेंटिव्स के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी इंसेंटिव शायद ही हिंदुस्तान में कोई मैच कर पाएगा। वो जैसे ही प्रकाश में आएगी तो आपके संज्ञान में भी आ जाएंगी। इंडस्ट्रियल पार्क जबलपुर में करीब 1000 एकर्स का है। सतकड़ी एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोगों ने भोपाल में बनाया है, वो 172 एकड़ का है जो कि अप्रैल और रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह को फोकस करने के लिए है। मध्य प्रदेश 3 चीज़ों के लिए मैं विशेष तौर से कहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है। और इसके बारे में पिछले 2.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से प्रयास किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में की रैंकिंग में मध्य प्रदेश हमेशा टॉप के स्टेट्स में रहा है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो भारत सरकार ने लिया है उसमें टॉप अचीवर्स की स्टेट में मध्य प्रदेश है। लास्ट ईयर डी रेगुलेशन की 23 प्रायोरिटी एरिया जो भारत सरकार ने बताई थी उन 23 के 23 को अचीव करने वाले जो 5 स्टेट थे शुरू के उन 5 में मध्य प्रदेश। और इस साल 28 प्रायोरिटी एरिया जो डी रेगुलेट करने के हिसाब से और आपके बिजनेस को सुविधा प्रदान करने के हिसाब से हैं उसमें भी 23 प्रायोरिटी एरिया और 5 ऑप्शनल प्रायोरिटी एरिया 28 के 28 मध्य प्रदेश कवर करने जा रहा है। हम एक पूरे मॉडर्नाइज आईटी सिस्टम के ऊपर फंक्शन करते हैं और सिंगल विंडो सिस्टम नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ क्लब है और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे सुविधाएं सर्विसेज हैं। AI बेस्ड है, GIS बेस्ड लैंड अलॉटमेंट है, बेनिफिट का ट्रांसफ़र डायरेक्टली है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सीएम साहब के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस की MSME इकाइयों को और उद्योग की इकाइयों को हम दे चुके हैं। और MSME इकाइयों की केस में तो हम इस लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी 31 मई तक की देनदारियाँ हम लोग सारी की सारी पूरी कर चुके हैं। कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन की बात मैंने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के साथ कर दी है। एक आखिरी में जो यहाँ पे जो स्लाइड में देख रहे हैं कि रिपीट इन्वेस्टमेंट फ्लोज मध्य प्रदेश की तासीर है कि अगर एक बार यहाँ पे आप आएंगे तो फिर आप यहीं के होके रह जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि कुछ लोग यहाँ पे होंगे ऑलरेडी जिनके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स होंगे। तो मैं केवल आप यही कहना चाहूँगा, एक बार आप आओगे, बार बार यहीं पर रहोगे, मध्य प्रदेश के होके रह जाओगे और बार बार आपका निवेश लगातार बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Moving forward, may I now request Mr. Manu Srivastav, Additional Principal Secretary, Department of New and Renewable Energy, Government of Madhya Pradesh, to please present on investment opportunities in renewable energy sector. Sir, please. I would share about the actual projects of renewable energy that are coming up in Madhya Pradesh. Honorable Chief Minister, the Madhya Pradesh team that is present here, and dear investors, I'll just specifically talk about projects that we have actually bid out, that the bids are invited. There are all projects dealing with solar and storage. I must tell you that these projects are very close to the heart of the Honorable Chief Minister. They've already actually announced by the Honorable Chief Minister during World Economic Forum in Davos. We have issued all the bids. Even the pre-bid meetings have been held very recently, and the bids are out in the open. So I would request bidders to participate. I would also share with you that one of the project is 24-hour solar plus a storage project that is very close to the heart of the Honorable Chief Minister. The pre-bid meeting that we held, and the pre-bid meeting was held very recently on 1st of July. Honorable Chief Minister actually addressed the bidders in the pre-bid meeting. I don't think there has been ever a pre-bid meeting where a Chief Minister actually speaks and participates and appeals to the bidders to participate in the pre-bid meeting.
And we also associating with University of Berkeley on this project, because the philosophical idea of this project is that if you are able to give renewable energy storage and at the same quantum of power throughout the day, you are actually providing reliable power just like thermal. And if that rate is lower than the cost of thermal, then you have philosophically established that renewable energy storage is a viable alternative to storage. So University of Berkeley has shared their workings with us, and they indicate, considering everything, solar, curtailment, cost of battery, everything else, battery replacement, etc., they estimate a cost of almost 5 rupees. Whereas cost of thermal power today is 6 rupees. So we are very hopeful about this project, and that is by the interest of Honorable Chief Minister for the project. We have, as I said, 3 projects, solar plus 4 hours of storage, solar plus 6 hours of storage, and the last one is one which supplies the same level of energy throughout the 24 hours. We have a lot of innovations in the project. We have kept it very technology neutral. The project can be located or non-co-located. It can have battery storage, it can have pumped storage, it can be within the state, it can be outside the state. The first model we provide a park. In a park we can have only battery. Obviously pumped storage cannot be there in the park. It is connected to the STU network. That is one configuration that's allowed. The other configuration is that you can be anywhere outside the park within the state at multiple locations that allows both battery and pumped storage. The other option is it can be anywhere in the country. Again, both battery and pumped storage is allowed. But since you are in the national network, CTU network, so we would have to load some sort of a loading value, because some ISTS charges and losses are paid. So we have to add that. And the other is a mixture of within the park and outside the park. We provide a lot of features. Honorable Chief Minister is in a hurry, and Eli was telling me that he has to go for another conference. I would keep it very short. We have a lot of features in our tenders which would help us bring down the prices and which would help to reduce the risks and uncertainties of our developers. I would just say that all our earlier projects have been successful. The first project in India which brought down the price of solar below coal was set up in Madhya Pradesh. 2017 completed in time. Recently, a project double that size, supplying to Indian Railways, which has got the lowest tariff in India, 2 rupees 14 paisa. That is now also complete. Honorable Chief Minister and Honorable MNRE Minister recently dedicated the project to the country. The largest floating project in the country, dedicated by Honorable Prime Minister, that is also in our state, and recently we got a rate of 2 rupees 70 paisa for solar and storage, and the PPA was signed in the presence of Honorable Chief Minister and Honorable MNRE Minister. So all our projects have been successful, and we invite you to be a part of the upcoming successes, and we welcome you to Madhya Pradesh. Thank you so much. धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री इलैया राजा, IAS, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, कि वे हम सभी को मध्य प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश के नए आयामों से अवगत कराएं। So good evening every one of you. Welcome you all to the heart of incredible India, Hindustan Ka Dil. Honorable Chief Minister sir, distinguished guest on the dais, and the investors and dear guest. I'm just going to play a small video about Madhya Pradesh. Can you please play a video? It's play. When I open my eyes to a day of beauty, nature's above. When I open my eyes to a day of beauty, enchanted by its scenic charms, I desire to bask in its blissful arms.
When the going gets tough and triumph upwards, I wish to rejoice my victories amidst the brave and the bold. The adventure then unveils, and to the courageous roars and soaring homes, I bow down and hail. For the times when the spirit is at peace, I seek the divine, and uncertainty I seize. Purity. Power. Passion and pleasure. The feelings that reside within are all I want to treasure. Beauty, adventure, peace and culture are my inner call. थोड़ा कल्पना कीजिए ओनली इमेजिनेशन फिर बोलते समझ गए तो आठ नहीं समझे तो मोड़ा नाट आप लोग घूम रहे भेड़ा खा Desire it all. मध्य प्रदेश, सब कुछ जो दिल चाहे. So मध्य प्रदेश, सब कुछ दिल चाहे. हिंदुस्तान का दिल. Welcome you again to the heart of incredible India. As you had seen in the video, we have 24 sanctuaries, 12 national parks, 9 tiger reserves, which is the highest in the country. It's a tiger state. And 18 UNESCO World Heritage Sites, again the highest in the country. So 3 are in permanent list, 15 in tentative list. We have 2 Jyotirlingas. When it comes to invest in Madhya Pradesh, our Honorable Chief Minister, he is a tourism man. He was a chairman Tourism Development Corporation. He knows, he's very passionate about tourism. So we framed tourism policy in such a way that investors are encouraged to come and invest in Madhya Pradesh. There is ease of doing business. There is an investment facilitation wing. There are 8 airports, 2 are international airports. Ours is the greenest state in the country. 30% of the Madhya Pradesh is covered with forest. It's a power surplus state. And as I told you, apart from 2 international airports, we have 8 other airports. During Honorable Chief Minister's period, 3 airports got inaugurated the last year. There is a intra-state connectivity, which is a PM Shri Heli Pariyatan Seva. So this again started just few months back, which is covering throughout the state. There is a spiritual sector, heritage sector, wildlife sector, and it gives an end-to-end experience, including the VIP darshan and accommodation and the guide services. So the tourist visits keep going up. You can see the figure in 2021, it's a 2.5 crores. In 2025, it has reached 21 crores. Domestic tourism and foreign tourists are surging like anything. For the tourism policy, we have again got a small video. So I'll just show you how the business are engaged in Madhya Pradesh. आप सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है. विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है. Madhya Pradesh, right at the heart of India, home to 18 UNESCO heritage sites and India's tiger, leopard, cheetah and vulture state.
There's something here for every traveler. Wildlife, spirituality at Singhast and Mahakal Lok, wellness, adventure or business. And we want investors like you to help us build it further. Our tourism policy 2025 makes investing simple. A 90-year lease at 1% annual rent, capital grants up to 30%, and relief on stamp duty. A dedicated investment facilitation wing and transparent online land allotment make it seamless. And ultra mega projects over 100 crores get direct allotment, no bidding required. Taking forward the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, Chief Minister Dr. Mohan Yadav is translating that vision into results. हाँ, हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है. And the land is ready too, available right across the state in districts like Sagar, Dhar, Indore, Jabalpur, Kanna, and Khandwa. Over 1,100 hectares in total. Big names like Oberoi, Radisson, and Sheraton have already invested here. Old palaces are turning into 5-star hotels. Forest lodges are welcoming guests from around the world. 323 projects live on the ground right now. And getting here is easy. 8 airports, dedicated heli and Puratan Vayu Seva, with a Tiger Corridor road on the way to connect it all. And what's coming next is even bigger. Ultra mega resorts, wellness retreats, and a warm welcome for filmmakers as India's most film-friendly state. The land, the incentives, the government, all ready and waiting. Come be part of the state's growth story and help us take it even further. So there is an investment video for you. The most important part of the investment is a fixed reserve price. In rural area, we kept it as a 5 lakh per hectare. This is very important for the hospitality sector to keep the land prices very low at the reserve price. And there is a stamp duty and registration fee exemptions. There is a customized incentive package available like for the industries. The soon Honorable Chief Minister is going to give a tourism industry status. That will be known in few months. And there is a 30% capital subsidy on the tourism hospitality projects. There is nowhere in India that much subsidy is given. If you invest 100 crore and 33 crore, the government gives you back. These are the 24 hospitality projects supported by the Tourism Policy 2025. These are the projects we already, the land has been given from the tourism department. And these are all the heritage properties. The state archaeological monuments have been denotified, been available for the investor. Till now, 14 heritage properties has been given to investors for the investment to convert into the heritage hotels. These are just the Oberoi Rajgarh in Khajuraho, just recently inaugurated. It's a very beautiful property. It's one of the most go-to destinations by the Wall Street Journal, USA. So there are so many brands have been supported by the MP Tourism. You name a brand, so we have all the brands in Madhya Pradesh. So to start with the Taj, Oberoi, Radisson, Sheraton. So these are all the upcoming brands who are coming up in Madhya Pradesh. They have already shown the intent to invest. Many of them are already investing in Madhya Pradesh. So there are PPP projects. We have a Madhya Pradesh Tourism Development Corporation which are developed. Now their properties, they are located in the very scenic locations. We have developed a lot of island resorts which are again available for the investor to come and invest. These are all readily available properties where investors can come and expand these projects. Again, we have a huge land bank available throughout Madhya Pradesh. And our film tourism policy is one of the best in the country. In fact, we are the most film-friendly state of the country. We do give subsidies for the film tourism to the tune of 2 crores for the film, for the web series, for documentaries. We give a subsidy to the tune of 1 crore. More than 500 films have been shot in Madhya Pradesh and 1,000 permissions have already been given. It has generated a lot of employment. And again, this has expanded to the rural and tribal areas also. You could see the production companies who are keep coming to Madhya Pradesh. MP has emerged as a repetitive shooting destination for all the production companies. You could see a very popular and famous production companies keep coming to Madhya Pradesh.
This is a subsidiary part I already explained for the films. To say a few projects, Stree, Panchayat, Gullak, all the popular web series you have seen all been shot in Madhya Pradesh. Second, we have a water tourism licensing policy. We give license within 7 days of applications. That is a fast way we do clear investment projects. And we have an adventure and camping policy. Again, license is given for 5 years, and then the fees is being kept very low, just 25,000. We do focus on responsible tourism, so that we do create a lot of experience in and around the tiger reserves, national parks, and involve tribal communities as a inclusive tourism in a project. We have a clean destination project supported by under CSR, and we have been awarded the best tourism village award by the Government of India for this responsible tourism mission. And these are all the projects till now MP Tourism have supported, and 272 crores subsidy has been already dispersed, which is the highest in the country. Once again, I welcome you all to Madhya Pradesh. Please come and explore and come to Madhya Pradesh and please stay there. Madhya Pradesh में एक बार आता है वो बार बार आता है, फिर मध्य प्रदेश में रह जाता है. Thank you so much. Thank you so much, sir. अब हम कार्यक्रम के उस महत्वपूर्ण चरण में आ गए हैं देवियों और सज्जनों, जो केवल एक औपचारिकता नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन और आर्थिक प्रगति के प्रति साझा संकल्प का सशक्त प्रतीक है. ये समझौता ज्ञापन MOUs केवल हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं है, बल्कि विश्वास, सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारी की एक नई शुरुआत है. इन साझेदारियों के माध्यम से निवेश, रोजगार सृजन, नवाचार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी, जिससे मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और अधिक सशक्त हो जाएगी. इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमापूर्ण उपस्थिति में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री चंद्रमौली शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर MPIDC, कि वे मंच पर आए और MOU एक्सचेंज करने के लिए आगे प्रस्थान करें. And I would request the industry leaders to please join us as I invite you here on the stage. सर्वप्रथम मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री A. रवि कुमार, कार्यकारी निदेशक मेटेक्सिल. मध्य प्रदेश में मानव निर्मित एवं तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेटेक्सिल के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है. GIS 2027 में संयुक्त सत्र एवं ज्ञान रिपोर्ट के माध्यम से निवेश की संभावनाओं को उजागर किया जाएगा. अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री मिथिलेश्वर ठाकुर, महासचिव AEPC. मध्य प्रदेश में परिधान निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AEPC के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है. GIS 2027 के दौरान राज्य में विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा तथा क्रेता विक्रेता बैठकों के माध्यम से सदस्य निर्यातकों को राज्य से जोड़ा जाएगा. Next, we would like to request Dr. Siddharth Rajgopal to please join us on the stage from Texprosil. मध्य प्रदेश में कपास वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टेक्सप्रोसिल के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है. GIS 2027 में समर्पित सत्र एवं व्यापार शिष्टमंडलों के माध्यम से निर्यात के नए अवसर सृजित किए जाएंगे. अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री सौरभ सान्याल, महासचिव एसोचैम. उद्योग जगत के व्यापक सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसोचैम के साथ समझौता किया जा रहा है.
GIS 2027 के अवसर पर एसोचैम अपनी वार्षिक साधारण सभा एवं प्रबंध समिति की बैठक मध्य प्रदेश में आयोजित करेगा तथा क्षेत्रीय चैम्बरों के माध्यम से उद्योग जगत की सहभागिता को बढ़ावा देगा। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री श्रीनिधि कलफपुरी को, प्रमुख अमेज़न ग्लोबल सेलिंग इंडिया। राज्य के निर्यातकों, MSME एवं शिल्पकारों को ई कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से अमेज़न ग्लोबल सेलिंग के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निर्यातकों को प्रशिक्षित एवं सक्षम बनाया जाएगा तथा मध्य प्रदेश को ई कॉमर्स निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री कीर्ति शर्मा, महासचिव PIOCCI। मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन, FDI सुविधा, क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडल, वैश्विक निवेशक रोड शो एवं राउंड टेबल, ज्ञान एवं नीतिगत सहयोग तथा प्रवासी भारतीय समुदाय के माध्यम से मध्य प्रदेश के वैश्विक निवेश संवर्धन हेतु सहयोग। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अजय सहाय, महानिदेशक व श्री सुवेद शाह, अतिरिक्त महानिदेशक FIO। राज्य के समग्र निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से FIO के साथ सहयोग स्थापित किया जा रहा है। रोड टू GIS 2027 अभियान एवं क्रेता विक्रेता बैठकों के माध्यम से व्यापक निर्यातक आधार तक पहुंच बनाई जाएगी। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंच पर आसीन सभी डिग्निटरीज को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि वे प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री केदार लेले, CEO हेलियन को, कि वे प्लीज आए और सभी को संबोधित करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इंडस्ट्री के मेरे मित्र एंड ऑल द इन्वाइटीज, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड यू माइट हैव हर्ड दैट माय नेम वाज कॉल्ड केदार लेले फ्रॉम हेलियन। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी कंपनी है, तो आप लोगों के सबके घरों में सेंसोडाइन से लेके और आयोडेक्स और क्रोसिन तक के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम नया है बट ब्रांड्स काफ़ी पुराने हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, राइट? तो जो मुझे बड़े सालों से जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ। पर 50 साल के मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुशी का मौका तब आया जब हेलियन कंपनी ने अपना पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए, जब हमने बहुत सारे स्टेट्स के साथ काम करना शुरू किया तो पता चला कि जो हमारी गाड़ी है वो आके मध्य प्रदेश पे रुक गई। एंड इट इज़ noteworthy that it's not about just the capital, resources or infrastructure. It's about confidence. What gives confidence to industrialists and businesses is policy predictability. What gives confidence is cooperation. What gives confidence is an open door policy. What gives confidence is ability to approach, come up with our issues. And right from the beginning, जब हमने शुरू किया कि we wanted India to be a manufacturing base, not just for India but also for exports. And we were fighting with countries like China and Southeast Asia. And we wanted a location which does not only provide great efficiency in terms of transport, great environment in terms of ecosystem, educated manpower, policies of the state, and collaboration so that we can get this project going in no time. और इस पूरी यात्रा में what we found is a state where the top leadership has the right intent, has positive policies, and has the ability to reach out to us and provide us the environment where we can do business. And Madhya Pradesh has always been known for natural resources, Paryatan, and so on. But it's such a delight to see MP coming up for industry,
for self-sufficiency, for new businesses, and for creating employment opportunities for everyone. So I'm really grateful because as we establish this industry and this factory here, it's not just about make in India, it's also make for the world. It's also a good, I should call it the good evidence of what's happening in our country today and how we will become a center of excellence, not just for services, but also for manufacturing. So from my side, of course, we are all waiting to hear from the Manya Mukhyamantri ji. So I will conclude here, inviting you to Madhya Pradesh because we will be in MP and we will represent one of the largest global companies with 1,35,000 crore of turnover, opening up our first site in MP very, very soon. Thank you very much. Dhanyawad aapka. धन्यवाद सर। देवी और सज्जनों, जब नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ संकल्प और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन जाए, तब निवेश केवल एक संभावना नहीं है बल्कि विश्वास का परिणाम बन जाता है। आज हम ऐसे ही नेतृत्व का स्वागत करने जा रहे हैं जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश निवेश, औद्योगिक विकास और समावेशी प्रगति की नई यात्रा तय कर रहा है। कृपया अपनी गर्मजोशी भरी तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के इस सत्र में मंच पर विराजमान CEO हेलियन ग्रुप श्रीमान केदार लेले जी, मैनेजिंग डायरेक्टर सनोफी श्रीमान दीपक जी, संस्थापक इज माई ट्रिप रिकांत पिट्टी जी, CEO टोपान श्रीमान मनोहरा जी, हमारे CS मनु श्रीवास्तव जी, PS राघवेंद्र जी, हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमान इलयराजा, गौतम मोहनका जी, इस सभागार में मौजूद अलग अलग व्यावसायिक घराने के स्वनाम हस्तियां, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत अपनी दुनिया के मानचित्र पर अपनी साख और धाक बना रहा है, ऐसे समय में हम सब सौभाग्यशाली हैं। वैसे आदिकाल से हिंदुस्तान की पहचान कहना के लिए तो कहा जाता था कि ये सोने की चिड़िया है, उस तरह के काल से अतीत के गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर कई सारे विश्लेषण, कई सारे अलंकार भारत को सदैव मिलते रहे। लेकिन हम और आप भाग्यशाली हैं, वर्तमान के दौर में बीते 12 साल बहुत छोटा सा समय होता है, बहुत बड़ा समय नहीं होता है। लेकिन इस 12 साल के छोटे से समय में भी वो सारी चीज़ें भी हो गई जिसके लिए कभी कभी हमको जो उलंबा मिलता था कि ये भारत में तो हो ही नहीं सकता, ये भारत के लोग कैसे कर देंगे, ये तो यहाँ असंभव है। मुझे इस बात का संतोष है, वो सारे असंभव काम को संभव करने का समय अगर कहीं चल रहा है तो वर्तमान का समय चल रहा है। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। और उसमें भी आश्चर्य की बात ये भी है कि वो सारे निर्णय आमतौर पर जो राजनेताओं को लेने के लिए कदम रोकते थे, क्योंकि लोक लुभावन नीतियों के कारण से लोक और वोट के चक्कर में आमतौर पर कठिन और कड़वे निर्णय लेने के लिए जब आगे बढ़ना तो कई बार बड़ी हिम्मत के साथ बढ़ना पड़ता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सारे मिथक भी तोड़े जिसके कारण से गुस्सा माना जाता था कि ये भारत में संभव नहीं। अब तो ये हो गया कि ये भारत में संभव है, दूसरे के यहाँ संभव नहीं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वर्तमान का समय चल रहा है। और उसमें भी और आनंद ये भी है कि एक राज्य के लिए आमतौर पर कोई जिस राज्य से नेता आकर दिल्ली में बैठते थे, आमतौर पर वो अपने गृह राज्य की चिंता करते थे, आमतौर पर राजनीति उसके आसपास घूमती थी। समान रूप से सबके लिए अवसर उपलब्ध कराना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर
सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने राज्य की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता के साथ साथ देश और दुनिया में अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर पाए और भारत सरकार की छतरी के अंतर भारत सरकार के माध्यम से सभी को आगे प्रमोशन का मौका मिले। मैं इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आप सबका भी अभिनंदन इस नाते से करना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन होने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के अंदर भी और बाकी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए कई सारी अनुकूलता बनाने के लिए भारत सरकार के माध्यम से जो मदद करना प्रारंभ की और उसी का परिणाम है मैं आज अपने बीच यहाँ बैठ करके आपके सबके साथ आमतौर पर मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री आकर भाषण दे के चले जाए, यही आदत रहती थी। लेकिन ऐसे इंटरेक्टिव सेशन के साथ हम सब मिलकर के GIS तो होने वाली जनवरी में, लेकिन अभी से निमंत्रण देने आपके बीच आए, यही तो दौर बदला है, यही समय बदला है जिसमें हमने अपनी बिजनेस की गंभीरता को भी कायम रखा है, जिसमें लगा है कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात का वचन और उस बात का वजन क्या है। और उसी के पहले पहले अलग अलग विभाग के हमारे दक्ष अधिकारियों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग की और सरकार की नीयत और नीति दोनों बताने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी अपनी साख और धाक बनाई है। हमारी सरकार ने भी अपनी गठन के साथ ये जो हमारे कदम बढ़े हैं, चुनाव का पहला साल अगर छोड़ दें तो बाकी के वर्ष को हमने हमारे अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए और राज्य के उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान एक अच्छे तेज गति से बढ़ने वाले उद्योग निवेशकों को आकर्षित करने वाले राज्य की बनना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे राज्य के लोगों का भी भला हो, निवेशक को अपना भी फायदा हो और कुल मिलाकर राज्य और प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर योग्य बौद्धिक क्षमताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, आर्थिक संपन्नता की दिशा में कदम बढ़े, लोगों को रोजगार के साथ गरीबी से और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से देखकर आपकी तरफ बात करता हूँ तो उदाहरण के लिए आज जब मैं 2027 की GIS की तरफ देख रहा हूँ जनवरी में, लेकिन उसकी तरफ देखने के पहले मैं 2025 की फरवरी की GIS की तरफ देखता हूँ। हमारे राज्य के अंदर राज्य के साथ अगर व्यापार व्यवसाय होना चाहिए तो उसकी नीतियाँ पारदर्शी होना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में अगर निवेशक को ज़्यादा धक्के खाना पड़े, टेबल जाना पड़े तो उसकी अपनी काम करने की आधी क्षमता तो वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी क्षमता हमारे जो वचनबद्धता की होती है, जो वचनबद्धता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अगर आगे जा रहे हैं तो जो कहा जाए उसको करने की अनुकूलता है न है। तीसरी, उसकी जितनी सारी बातें कही जा रही है उसमें उसकी गंभीरता और गहराई क्या है, उसके अंदर की डेप्थ देख करके व्यापार व्यवसाय के लिए व्यापार करने वाले सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें तो आप सब समझते हैं। अगर हमारे लिए वहाँ की लेबर पॉलिसियाँ, वहाँ की लेबर का स्वभाव, अपनी बाकी सारी बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की अनुकूलता है, अगर ये सारी सिलसिलेवार देखने जाएं तो मुझे इस बात का संतोष है एक नहीं कई प्रकार से हमारे राज्य ने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर एक एक सेक्टर में, ये तो कॉमन रूप से अभी सारी बातें कही जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यहाँ से आने के पहले थोड़ा विलम्ब से आने की क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हमारे भारत सरकार के भारत फेस्ट 2026 के हमारे पास परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश में कपास और कपास के साथ ऑर्गेनिक कॉटन के लिए अगर फसल की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भारत में नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश है। लेकिन कॉटन इंडस्ट्रियों के लिए दुर्भाग्य से अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्रियाँ बहुत सारी थी, लेकिन नीतियों के कारण से, सरकार की नीतियों पे उदासीनता के कारण से, नई टेक्नोलॉजी को न अपनाने के कारण से जिस बात का सरताज मध्य प्रदेश हुआ करता था
लेकिन वो सरताज से बेताज होते भी हमने मध्य प्रदेश को देखा है। और आज बदलते दौर में हमने कहा कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ऑर्गेनिक कॉटन अगर है तो हमारे निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है। इसलिए मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क 2000 एकड़ से बड़ा अगर कहीं भूमि पूजन होकर के अगर भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को गौरवान्वित करता है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, जिस दिन भूमि पूजन हो रहा है इंडस्ट्रियल पार्क का उसी दिन उसके सारे प्लाट बिक जाते हैं। ये भी गौरव हमारे मध्य प्रदेश का है, ये हमारे काम करने का तरीका है। ऐसा तो होता ही नहीं। आमतौर पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, बनने के बाद किसी को जमेगा किसी को नहीं जमेगा, बाद में बहुत सारी बात होती, लेकिन काम करने के तरीके, काम के रिजल्ट और कही गई वचनबद्धता का परिणाम है। केवल इतना ही नहीं, आज हर सेक्टर में मध्य प्रदेश के साथ बड़ी अनुकूलता मिली। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नीतियां, सरल प्रक्रियाओं के कारण निवेश का केंद्र मध्य प्रदेश बना है। बीते समय जीआईएस में जो हमारे पास लगभग 32 लाख से ज्यादा के प्रस्ताव जो आए थे, जीआईएस के प्रस्ताव आमतौर पर 10% धरातल पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल 1.5 साल में ही 10 लाख करोड़ से धरातल पे न केवल प्रस्ताव उतरे बल्कि काम भी प्रारंभ हो गया। ये हमारे लिए काम करने का तरीका है, ये हमारे अपने रिजल्ट है, जिसके कारण से हम दूसरी बार जीआईएस की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक नहीं, कई सेक्टर में कई जगह अब तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश की बिजली हमारी भोपाल और मध्य प्रदेश की पूर्ति तो कर ही रही है, लेकिन विश्व से सबसे ज्यादा सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो हमारे मध्य प्रदेश से मिल रही इतनी सस्ती बिजली पूरे देश तो क्या दुनिया में भी नहीं। ये वर्तमान के समय का रिकॉर्ड है। इंडस्ट्री लगाओ तो हम आज जिस जगह से आ रहे हैं तो वहाँ कह रहे थे कि इंडस्ट्री लगाओ तो जनरेटर सेट लगाना पड़ते, लेकिन हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अगर इंडस्ट्री लगा रहे हो तो बिजली जाती ही नहीं है, तो आपको यह की जरूरत ही नहीं है अपने आप में कि बिजली के आपको चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि बिजली सरप्लस है। और बिजली सरप्लस तो है ही, लेकिन बिजली से ज्यादा बिजली के दाम में भी अलग से आपको लाभ मिलने वाला है। आपके साथ इंडस्ट्री के साथ कभी कोई लेबर प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जनता भी इतनी अच्छी है और जनता के साथ व्यवहार भी इतना अच्छा है कि लेबर प्रॉब्लम कभी नहीं होती। कोई उद्योगपति उद्योग लगा करके मध्य प्रदेश में 10-20 साल कहीं दूसरे काम पे लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता अपने काम को अच्छे से प्रेम से करना जानती है और निभाना भी जानती। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज के इस समय में वर्तमान के दौर में हमने विक्रमादित्य का नाम अतीत के काल से सुना होगा, लेकिन विक्रमादित्य के राज्य में आज भी कई सारी अनुकूलताएं उसी प्रकार से बनी हुई है। आज हमारे पास एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की संभावना। अकेले फूड इंडस्ट्रियों की अगर बात करें तो आज फूड इंडस्ट्री में हमारे मध्य प्रदेश में अनुकूलता इतनी है कि देश के अंदर सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों राज्यों में से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है, और जिसने अपने गेहूं उपार्जन में भी आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं का उपार्जन हमारे यहाँ किया है। कई प्रकार की फूड इंडस्ट्रियों में भी जिस प्रकार से छूट देते हैं, ये पॉलिसियां अगर देखोगे, अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो 75 पैसे अगर आपको वापस मिल जाए तो इंडस्ट्री है कि आपको प्रोत्साहन है। और हमारे लिए किसानों के लिए हमारी प्रायोरिटी होने के कारण से, जैसे हमारे पीएस ने बताया, इंडस्ट्री आपकी, प्रोडक्ट भी आपका, लेबर भी आपका, लेकिन लेबर को 5,000 रुपये महीना 5 साल तक हम फ्री दे रहे हैं। ये भी तो आप ही के लिए है, ताकि आपके माध्यम से रोजगार परक उद्योग हमको मिले, रोजगार को हमको बढ़ावा देने के लिए जिस इंडस्ट्रियों में रोजगार की संभावना है उस इंडस्ट्रियों को उस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जो रोजगार परक नहीं है उनके लिए भी हम बहुत गुंजाइश दे रहे हैं। लैंड बैंक हमारा पर्याप्त है, पानी की बहुत उपलब्धता है, सभी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए जैसी संभावना हो सकती है वो सारी की सारी हमारे पास संभावना है। ऐसे में फूड पार्क, आईटी पार्क, प्लग एंड प्ले, औद्योगिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और कई सारे प्रकार के साथ साथ 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़क का नेटवर्क मध्य प्रदेश के पास है। सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट, 6 अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर, एक्सप्रेसवे, हाईवे। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आपने सारी बात सुन ली। और अच्छा उद्योगपति वो जो थोड़े में ज्यादा समझ जाए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उद्योगपति भाषा से ज्यादा भावना समझता है
चेहरे को पढ़ करके सारा निचोड़ निकाल लेता है। तो हमारा और आपका समय बहुत महत्व का है। आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक उद्बोधन के लिए हम आपकी ओर हार्दिक कृतज्ञता व आभार व्यक्त करते हैं। देवी और सज्जनों, इस सार्थक संवाद के साथ हम इस सत्र की समापन की ओर बढ़ते हैं। आज इस सत्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश केवल अवसरों की भूमि नहीं है, बल्कि उन अवसरों को सफलता में बदलने का सशक्त मंच है। याद रखें, सही दिशा में किया गया निवेश सिर्फ लाभ नहीं, भविष्य की नींव बनाता है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सब